On the day of Baisakhi, people had gathered at Jallianwala Bagh to celebrate Baisakhi, in spite of the orders prohibiting any assembly. At the meeting, two resolutions were to be discussed. One, condemning the firing on April the 10th, and the other requesting the authorities to release their leaders. When the news reached the police, the tyrant Brigadier General Reginald Dyer headed to the Bagh with his troops. He entered the Bagh, deployed his troops, and ordered them to open fire without giving any warning. People rushed to the exits, but Dyer directed his soldiers to fire at the exit. The indiscriminate firing continued for 10 to 15 minutes, and it ceased only after the ammunition had run out. Over 1,650 rounds were fired. The total estimated figure of the dead as given by General Dyer was 291. However, other reports, including that of a committee headed by Madan Mohan Malviya, put the figure of dead at over 500. As the news of the massacre spread across the nation, Gurudev Rabindranath Tagore renounced his knighthood. General Dyer's actions on the day of the massacre received a prompt acknowledgement from the Lieutenant Governor of Punjab, Michael O'Dwyer, who at once wired to him, "Your action is correct. Lieutenant Governor approves." Both the British officers, Reginald Dyer and Michael O'Dwyer, faced violent criticism. On 14th of October 1919, the Disorders Inquiry Committee, also known as the Hunter Commission, was formed to inquire about the massacre. The commission only censured Dyer for his actions and asked him to resign from his appointment as brigade commander. But the fire of revenge was alive in Indian revolutionaries. The barbaric Brigadier General Reginald Dyer died in 1927 due to a stroke. But the then Lieutenant Governor of Punjab, Michael O'Dwyer, had to face the wrath when 21 years after the Jallianwala Bagh massacre, Michael O'Dwyer was shot by the revolutionary freedom fighter Udham Singh on the 13th of March 1940 in London. After independence, a memorial was set up by the Government of India in 1951 at Jallianwala Bagh to commemorate the spirit of Indian revolutionaries and the people who lost their lives in the brutal massacre. It stands as a symbol of struggle and sacrifice and continues to instill गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसे कि आपने अभी आप सुना जलियांवाला बाग हत्याकांड के विषय में, जो जनरल ओडायर द्वारा गोलीकांड के माध्यम से किया गया 13 अप्रैल 1919 को फ्रेंड्स। तो बहुत बड़ी त्रासदी जनरल डायल के द्वारा की गई अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 को, और इसका बदला इनकी हत्या करके, इन्हें मार के ये कहेंगे कि हम इन्हें मुक्त करके इस जीवन से उधम सिंह द्वारा लिया गया है जलियांवाला बाग का हत्याकांड का बदला फ्रेंड्स। इससे जो ये तो हमें जानना है, भारत का नागरिक होने के नाते संविधान भी हमें इसके निर्देश देता है कि हमें राष्ट्रीय चेतना को बनाए रखने के लिए, राष्ट्रीय हित को सुनिश्चित करने के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए, और हमें अपने स्वतंत्रता सेनानियों के विषय में जानना चाहिए और राष्ट्र प्रेम की भावना को दिल में संजोए रखना चाहिए। तो इसलिए हमें जानना जरूरी है कि किस प्रकार अंग्रेज़ों ने हमारे खिलाफ अत्याचार किया और क्या स्थितियाँ होती हैं जब हम किसी अन्य देश की गुलामी में अपना जीवन यापन करते हैं, और क्या उपयोगिता हमारे आज़ादी की फ्रेंड्स। तो 13 अप्रैल 1919 को ये हत्याकांड किया गया, और इसके जांच हेतु जो कमीशन गठित किया गया, हंटर आयोग गठित किया गया फ्रेंड्स। और जो लोग वहाँ पर इकट्ठा हुए थे इस बाग में, वो हुए थे रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए। जो सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल थे, उनकी गिरफ्तारी के विरोध में लोग वहाँ पर इकट्ठा हुए थे। तो इस प्रकार प्रश्न पूछे जाते हैं
कि क्यों लोग वहाँ इकट्ठा हुए थे और क्या आयोग इसकी जांच के लिए गठित किया गया। तो हंटर आयोग, और कांग्रेस ने जो इसके जांच के लिए गठित किया उसके मदन मोहन मालवीय जी उसके अध्यक्ष थे उस आयोग के। जो फ्रेंड्स शहीद लोगों की संख्या बताई गई जनरल डायर द्वारा 291 बताई गई, जबकि 500 से अधिक अन्य स्रोतों से हमें ज्ञात होता है कि 500 से अधिक यहाँ पर लोग शहीद हुए थे। और सरदार उधम सिंह ने, हमारे माननीय स्वर्गीय उधम सिंह जी द्वारा इस हत्याकांड का बदला लिया गया है। जनरल डायर को इस दुनिया से विदा करके 1940 में उन्होंने जनरल डायर को इस दुनिया से विदा किया। फ्रेंड्स, सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में यहाँ पर लोग इकट्ठा हुए थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं कि क्या वहाँ पर कोई कार्यक्रम चल रहा था रॉलेट एक्ट के खिलाफ, जिसे काला कानून भी कहा जाता है। उसके खिलाफ ये वहाँ पर कोई कार्यक्रम चल रहा था। हंटर कमीशन अंग्रेजों द्वारा इसकी जांच के लिए बैठाया गया और कांग्रेस द्वारा मदन मोहन मालवीय जी की अध्यक्षता में आयोग गठित किया गया जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए। अमृतसर में फ्रेंड्स ये जलियांवाला बाग है और 1951 में फ्रेंड्स वहाँ पर स्मारक स्थापित कर दिया गया शहीद लोगों की स्मृति में। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने नाइटहुड की जो उन्हें उपाधि दी गई थी वो उन्हें त्याग दी इस हत्याकांड के बाद, इस घृणित हत्याकांड के बाद, जघन्य हत्याकांड के बाद। और कई लोगों ने नारायण इसमें जो थे कि शंकर नारायण ने अपने काउंसिल से इस्तीफा दिया। कई लोगों ने अपनी उपाधियों का यहाँ पर को त्याग किया और सरकार में अगर जो सम्मिलित थे किसी पद में तो उन्होंने अपना त्यागपत्र इस हत्याकांड के बाद दिया। तो फ्रेंड्स, इसको जानना तो हमें ज़रूरी है, एक देश का नागरिक होने के नाते जानना ज़रूरी भी है और हर पहलू से इसे जानना हमें ज़रूरी है देश का निवासी होने के नाते। और परीक्षा उपयोग की दृष्टि से अगर हम देखें तो इसकी तारीख पूछी जाती है, किस तारीख को ये घटना हुई थी, 13 अप्रैल 1919 को। किस कारण से? सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में। मुख्य क्या था? जो रॉलेट एक्ट था उसके विरोध में। सिडनी रॉलेट ने जो निर्मित किया था एक्ट, उसके विरोध में लोग इकट्ठा हुए थे। और जो 291 लोगों की शहीद होने की बात करता है ये डायर करता है और इस 500 से अधिक लोग वहाँ शहीद हुए थे। और यहाँ पर ये भी एक विशेष तथ्य है फ्रेंड्स, जब तक उनके गोलियां समाप्त नहीं होगी तब तक गोलियां चलाई गई। गोलियां समाप्त होने तक लोगों ने कुओं में कूद करके अपनी जान दी, अपनी जान बचाने के लिए। बच्चे, महिलाएं, वृद्ध, सभी लोग वहाँ पर इकट्ठा हुए थे। एक जघन्य अपराध, एक घृणित कृत्य अंग्रेजों द्वारा किया गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप मेरे वीडियो को देखिए, बार बार लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इस प्रकार की उपयोगी जानकारी मैं आपको बार बार प्रदान करता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।